Hello dear students, I am back with the another point, biocontrol agents, bacterial, viral and fungal under the main heading of soil microbiology. तो आज हम बैक्टीरियल बायोकंट्रोल एजेंट के बारे में सीखेंगे and in the next lecture we will discuss about the viral and fungal and their large scale production. Now, why we use the biocontrol agents? That is the first question. So the answer of this question is to control the pest and to prevent the crop from the pest. So we use the biocontrol agent or in short biopesticides. Biocontrol agent कुछ अलग नहीं है. It is synonym for or similar to that of the biopesticides. पेस्ट दिस आर द इंसेक्ट्स विच हार्म द क्रॉप. ठीक है, पेस्ट ये वर्ड आगे भी यूज होगा. तो पेस्ट क्या है? ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं विच हार्म द क्रॉप. So to control the pest from destroying crops, we use the biopesticides which are made up of bacterial, viral or fungal or chemical pesticides like carbamates, organophosphate, etc. Chemical pesticides, they show toxic effect and may result in loss of some beneficial species or beneficial crops. So to overcome this disadvantage, biocontrol or biopesticides are used. अब chemical pesticides के, as it is completely chemical pesticides, it may harm the health of the humans as well as plants. बट अगर हम बायोपेस्टिसाइड केमिकल पेस्टिसाइड से कंपेयर करें तो बायोपेस्टिसाइड्स आर ऑलवेज यूजफुल बिकॉज दे मेंटेन द हेल्थ ऑफ प्लांट एज वेल एज ह्यूमन बींग्स. सो देर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ दिस बायोपेस्टिसाइड्स as compared to this chemical pesticides. Now what are these biocontrol agents? These are defined as the agents which control the plant pathogens and diseases usually caused by them through antagonistic microorganisms is termed as biological control agents. तो ये क्या करते हैं? प्लांट पैथोजेंस और डिसीजेस कंट्रोल करते हैं थ्रू एंटागोनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब एंटागोनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? दिस आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट सप्रेसेस और इंटरफेयर्स विथ नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट पैथोजन दैट आर नोन एज एंटागोनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट पैथोजन की ग्रोथ सप्रेस करते हैं, इनिबिट करते हैं या फिर उन्हें डायरेक्टली किल करते हैं. तो ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं? और उन्हीं की दिस एंटागोनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मदद से वी प्रिपेयर दी बायो कंट्रोल एजेंट्स और बायोपेस्टिसाइड्स. सो दिस एंटागोनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ट्राइकोडर्मा, पेनिसिलियम, बैसिलस, सुडोमोनास, बीटी एक्सेट्रा. तो ये सब एंटागोनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. According to Baker and Cooks in the year 1974, biological control, it is the reduction of inoculum or disease producing activity of a pathogen accomplished by or through one or more organisms other than man. तो बेकर और कुक ने बायो कंट्रोल को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है. बायो कंट्रोल या फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल जो एजेंट्स हैं, दिस आर नथिंग बट दे रिड्यूस द डिसीज कॉजिंग पैथोजन एंड बाय यूजिंग दिस एंटागोनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो यहाँ पर प्रेडिटर्स, माइक्रोब्स एंड पैरासाइट्स, ये 3 टर्म्स मेंशन किए हैं. प्रेडिटर्स, दिस आर द अटैकर विच फीड ऑन द प्रे. ओके, तो अगर हम प्रेडिटर का यूज़ करेंगे तो जो प्रे है, प्रे दे में एक्ट एज अ पेस्ट. तो प्रेडिटर का अगर हम यूज़ करते हैं, दिस प्रेडिटर कैन अटैक दिस प्रे एंड प्रे कैन गेट किल्ड. तो इस तरीके से हम क्रॉप मेंटेन कर सकते हैं या फिर क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं.
Either you can use any type of microbes or you can use the parasites. Parasites, these are the organisms which live on the another organisms. तो parasites का इस्तेमाल करके भी हम insects को kill कर सकते हैं and we can protect the plant. Why we need biological control agents? It is an alternative to chemical pesticides, and these biological control agents are non-toxic to human as well as animal. These are not polluted, host specific है, and they affect one or few species. These are some name of bacteria and target pest. तो पहला है बैसिलस thurengenesis, उसमें वैरायटी है कुर्स्ताकी एंड दे अटैक दी पेस्ट लाइक लेपिडोप्टेरा, कोलेप्टेरा, डिप्टेरा, ऐसे कुछ पेस्ट को ये अटैक करता है. देन लाइसिनी बैसिलस इज देयर, it attacks the pest called diphtheria. Serratia is there, it attacks the pest of Costellia trazi. तो ये सब पेस्ट के नाम हैं and these are the bacteria which attack this pest. Now let's start one by one. पहला है बैक्टीरियल बायोपेस्टिसाइड्स या फिर बैक्टीरियल बायोकंट्रोल एजेंट्स. इसमें हम दो बैक्टीरिया स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज Pseudomonas fluorescens and second is Bacillus thuringiensis. First one is Pseudomonas fluorescens. This is the gram-negative rod-shaped bacteria. It belongs to the genus Pseudomonas. Pseudomonas fluorescens has multiple flagella. Morphology है. It has an extremely versatile mechanism और versatile metabolism. तो इसका जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है इट इज़ अ वेरी वर्सेटाइल. इट प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट. इट इज़ एन ऑब्लिगेट एरोबिक एंड सर्टन स्ट्रेन्स आर कैपेबल ऑफ यूजिंग नाइट्रेट इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन का यूज ना करके दे यूज द नाइट्रेट एज एन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन. ईटीसी चेन में ये नाइट्रोजन और नाइट्राइट यूज करते हैं एज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. Pseudomonas fluorescens as biocontrol agent, they produce a wide spectrum of bioactive metabolites. तो ये बैक्टीरिया एज अ बायोकंट्रोल एजेंट क्यों यूज किया जाता है? What is the reason behind using this Pseudomonas fluorescens as a biocontrol agent? So reason are it produces a wide spectrum of bioactive metabolites. Secondly, it competes with other microorganisms. मतलब ये harmful microorganism के साथ compete करते हैं. And as when competition occurs, it may harm the other pathogenic microorganism. It adapt to the environmental stresses and it is inexpensive. तो जो climatic stresses है like drought condition, तो ये सारे conditions को ये tolerant है. So we can use this Pseudomonas fluorescens for manufacturing of this biocontrol agent. What is the mode of action? ये बैक्टीरिया ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है जिसके वजह से पेस्ट ये कील होते हैं या फिर पेस्ट ये कंट्रोल होते हैं? तो कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स ये सुडोमोनास प्रोड्यूस करता है? फर्स्ट इज एंटीबायोटिक प्रोडक्शन. सो एंटीबायोटिक इट इज़ यहाँ पर हम ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं विच इनहिबिट्स और किल्स द ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म. सो ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है. एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने के बाद ये प्लांट पैथोजन या फिर प्लांट पेस्ट को किल कर सकता है. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग जिसके वजह से हम सुडोमोनास ये यूज कर सकते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट. सेकेंड इज सिडेरोफोर प्रोडक्शन. सिडेरोफोर्स क्या है? दिस आर दी आयन चिलेटिंग एजेंट्स. ये आयन चिलेटिंग एजेंट्स है जो आयन ट्रांसपोर्ट करते हैं अक्रॉस दी मेम्ब्रेन.
और ये सिडरोफोर्स कौन से प्रोड्यूस करता है, लाइक पायोवर्डाइन एंड सुडोबैसिट्रिन. दिस आर द नेम्स ऑफ सिडरोफोर्स, पायोवर्डाइन एंड सुडोबैसिट्रिन. So siderophores, these are the ion chelating agents which transport the ion across the membrane. Third is induced systemic resistance. These are the resistant competition. ये हमने previously देखा, competition के वजह से ये पेस्ट को किल कर सकता है, नहीं किल तो उनकी ग्रोथ एटलीस्ट स्टॉप कर सकता है. It produces the hydrogen cyanide which may attack the pest, and this bacterium also act as a plant growth promoting rhizobacteria. So these are the certain mode of action by which we can use, or we can say these are the reasons why we can use this Pseudomonas fluorescens in or as biocontrol agent. नेक्स्ट इज बैसिलस thuringiensis. अब बैसिलस thuringiensis हम सब अवेयर हैं इस बैक्टीरिया के बारे में. व्हाट इज दिस बैक्टीरिया? तो बैसिलस thuringiensis विच इज ऑल्सो नोन एज बीटी. It was discovered in Japan in early 20th century and first become a commercial product in France 1938. जापान में डिस्कवर हुआ है 20th सेंचुरी में और कमर्शियली ये फ्रांस में पहली बार यूज हुआ है. इट कंट्रोल द लेपिडोप्टेरस पेस्ट लाइक अमेरिकन बॉलवर्म इन कॉटन एंड स्टेम बोरर्स इन राइस. अब सबसे पहले ये क्या करता है? इट कंट्रोल्स द लेपिडोप्टेरस पेस्ट. नाउ व्हाट आर लेपिडोप्टेरस पेस्ट? विच इंक्लूड्स टोबैको बर्डवर्म एंड आर्मी वर्म. ठीक है, तो इस क्लास के अंडर आते हैं वर्म्स लाइक टोबैको बर्डवर्म एंड आर्मी वर्म. तो ये लेपिडोप्टेरस पेस्ट कंट्रोल करता है, जैसे कि अमेरिकन बॉलवर्म इन कॉटन. बॉलवर्म दिस इज द डिसीज विच ऑकर इन द कॉटन. अब यहाँ पर इट इज लाइक अ ईयरवर्म, लार्वी ऑफ विच एक वर्म है. ओके, बॉलवर्म इट इज अ वर्म, larvae of which feed on a wide range of plants, and it is a major pest in the cotton. So that is the cotton bollworm. And second is stem borers in rice, means it create the bore at the base of the rice plant. Bore create करता है at the base of the rice plant. So when ingested by the pest larva, जब लार्वी पेस्ट लार्वी ये बीटी इंजेस्ट करती है, तब बीटी इट रिलीजेस द टॉक्सिन विच डैमेज द गट ऑफ द पेस्ट एंड किल इट. मेन सोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीटी प्रिपरेशंस आर द स्ट्रेन्स ऑफ द कुर्स्ताकी, गैलेरिया एंड डेंड्रोलिमस. तो ये स्ट्रेन्स या फिर ये सब स्पेशीज यूज करके हम बीटी एज अ बायो कंट्रोल एजेंट या बायोपेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज बैसिलस thuringiensis को अगर हम और डीप समझने की कोशिश करें तो इट इज द ग्राम पॉजिटिव एरोबिक बैक्टीरिया, फैकल्टेटिव एंड स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया. दिस आर द कॉजेटिव एजेंट ऑफ लेपिडोप्टेरा. लेपिडोप्टेरा हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, टोबैको बर्डवर्म या दिस आर द आर्मी वर्म्स, या फिर diphtherians. This includes the flies, mosquitoes, and next is hymenoptera. These are the bees or insects. Next, it contains the parasporal body. अब ये न्यू टर्म है, parasporal body. What is the parasporal body? These are the during spore formation, as it is the spore forming bacteria. So during spore formation this bacteria produce crystals of protein. ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन के समय ये बैक्टीरिया क्रिस्टल्स बनाता है प्रोटीन के, एंड दैट इज नोन एज पैरास्पोरल बॉडी. ओके,
So that is the proteinaceous and possesses the insecticidal properties. तो ये proteinaceous part है, and this part, it is active or it shows the insecticidal property. The parasporal body comprises of crystals and tightly packed with proteins called as prototoxins और endotoxins. जैसे मैंने आपको बताया कि स्पोर फॉर्मेशन के समय बैक्टीरिया ये क्रिस्टल्स बनाते हैं प्रोटीन्स के, उसी को हम पैरास्पोरल बॉडी बोलते हैं. और ये इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी दिखाती है, मीन्स इट किल्स द इंसेक्ट एंड इट प्रोड्यूसेस द टॉक्सिन सो दैट इंसेक्ट गेट्स किल्ड. सो ये रहा पहला पार्ट, दैट इज पैरास्पोरल बॉडी. सेकेंड पार्ट इसमें इन्वॉल्व है क्रायोजीन. Okay, so cryogen, nearly 100 subspecies and varieties divided into 70 serotypes. ये मार्फोलॉजी है. देन अगर क्रायोजीन के बारे में मैं बात करूँ, वी विल डिस्कस डायरेक्टली मोड ऑफ एक्शन कि क्रायोजीन ये क्या है. नाउ द चॉइस ऑफ जीन, डिफरेंट क्रायोजीन्स आर प्रेजेंट इन दिस बीटी टॉक्सिन. BT toxin, it is used as a biocontrol agent. BT toxin is produced by cryogen, जो हम बोल रहे हैं टॉक्सिन. तो ये टॉक्सिन कौन बनाता है? क्रायोजीन बनाता है. ओके, एंड द चॉइस ऑफ दिस जीन डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट. लेट्स सी द मोड ऑफ एक्शन. एक्चुअली होता क्या है, मैकेनिज्म क्या है, दैट वी विल सी. By using recombinant DNA technology, when we inject BT gene, okay, recombinant DNA technology का इस्तेमाल करके जब हम BT gene introduce करते हैं, this gene expresses and produce BT mRNA through the process called transcription. Then it will produce BT toxin protein through the process called translation, which will act as a BT toxin, and this process takes place in each cell of the plant. Okay, and if larvae of insect feeds on this leaf, it will not able to survive. समझ रहे हैं? तो जब हम बायो कंट्रोल एजेंट ये स्प्रे करते हैं प्लांट के ऊपर, तो एक्चुअली प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस ये होती है कि ये जीन एक्सप्रेस होता है एंड प्रोड्यूसेस द बीटी mRNA through the process called transcription. Then it will produce the BT toxin protein through the process called as translation, and it will act as a BT toxin. और जब लार्वी इस लीफ पे फीड होगा, it will not able to survive, it will get killed. Why it happens? Because BT toxin is present in inactive form in plant. Okay, plant में ये inactive form में present होता है and gets activated. ये कब activate होता है? ये activate होता है when it enters the gut of larvae or gut of the caterpillar. ठीक है, डायरेक्टली हम डायग्राम देखेंगे एक्चुअली होता क्या है. अब हम जब प्लांट के ऊपर इसे स्प्रे करते हैं, ओके, तो एक्चुअली प्रोसेस क्या होती है, हमने देखा कि जीन एक्टिवेट होता है, बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है. नाउ दिस टॉक्सिन इज प्रेजेंट, एज आई टोल्ड, दिस टॉक्सिन इज प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म इन प्लांट and gets activated when it enters the gut or intestine of larvae और कैटरपिलर. देयर, यहाँ पर क्या करता है, देयर इट बाइंड टू द रिसेप्टर ऑफ इपिथेलियल सेल्स ऑफ गट एंड ओपन आयन चैनल, and ions from the lumen will enter into this epithelial cell and lysis of this cell happens and at last insect dies. यहाँ पर डायग्राम दिखाइए, समराइज करते हैं हम थ्रू दिस डायग्राम. दिस आर दी प्रोटीन और वी कैन से पैरास्पोरल बॉडी है ये ऑफ बैसिलस thuringiensis. तो ये है लार्वी. ये डायग्राम जो मैंने दिखाई है, दिस इज द डायग्राम ऑफ लार्वी. दिस लार्वी, ये
लीफ पे अटैक करता है या फिर लीफ पे फीड करता है और लीफ में ऑलरेडी बीटी प्रेजेंट है, सो इट विल फीड दैट प्लांट और इस लार्वी के अंदर वो बैसिलस thuringiensis एंटर होगा. ओके, एंड बैसिलस thuringiensis इट कंसिस्ट ऑफ द स्पोर्स एंड पैरास्पोरल बॉडी. उसका डिसोसिएशन होगा, इट विल ब्रेक दैट प्रोटीन एंड देन देयर विल बी एक्टिवेशन ऑफ दैट प्रोटीन. ओके, क्योंकि इन द लीफ तो वो इनएक्टिव फॉर्म में है. When it will enter the gut of this larvae, it will get activated. Then it will bind to the receptor of epithelial cells. Okay, binding to the specific receptor that is of epithelial cells of gut. And when it will bind, it will open the ion channel, and ions from the lumen or stomach will enter into this epithelial cell. और epithelial cell में अब सब ions present हैं, and it will rupture or lysis will happen and ultimately there will be death of that insect. तो कुछ इस तरीके से होता है mechanism. Now question arises, why does Bt toxin not kill the bacterium that produces it but kills the insect that ingests it? क्वेश्चन ऐसे राइज होता है कि बीटी टॉक्सिन जो बैक्टीरिया में प्रोड्यूस होता है वो उससे क्यों नहीं मारता, बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारता, व्हाई इट किल्स द इंसेक्ट. सो जो हमें वो कंसेप्ट पता है, पेप्सिन, दिस पेप्सिन इज रिलीज्ड इन द इनएक्टिव फॉर्म, दैट इज पेप्सिनोजेन इन लीवर एंड इट गेट्स एक्टिवेटेड, दैट इज पेप्सिन एंड ब्रेक्स द प्रोटीन. तो पेप्सिन और पेप्सिनोजेन ऐसे दो फॉर्म है, इनएक्टिव एंड एक्टिव फॉर्म. सेम वो कंसेप्ट यहाँ पर रिलेटेबल है. बीटी टॉक्सिन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया कॉल्ड बैसिलस thuringiensis. ठीक है, बीटी टॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है, बैसिलस thuringiensis. ये टॉक्सिन बैक्टीरिया को किल नहीं करता बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द इनएक्टिव फॉर्म. ओके, इट इज इन एन इनएक्टिव फॉर्म एंड क्रिस्टलाइन प्रोटोटॉक्सिन फॉर्म. तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, प्रोटॉक्सिन फॉर्म में होता है. लेकिन ये कब एक्टिव बनता है, कब टॉक्सिक बनता है, व्हेन इट इज कंज्यूम्ड बाय द इंसेक्ट, व्हेन इट एंटर्स द इंटेस्टाइन ऑफ द इंसेक्ट, इट प्रोड्यूसेस, ये प्रोटॉक्सिन का कन्वर्जन होता है डेल्टा एंडोटॉक्सिन में एंड द इंसेक्ट गेट किल्ड. मतलब बैक्टीरिया में जब वो प्रेजेंट होता है तब वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है और उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इट एंटर्स इनटू द गट ऑफ इंटेस्टाइन एंड इट प्रोड्यूसेस द डेल्टा टॉक्सिन एंड अल्टीमेटली इंसेक्ट गेट्स किल्ड. सो दिस इज ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरियल बायोकंट्रोल एजेंट और बैक्टीरिया एज अ बायोकंट्रोल एजेंट. थैंक यू.